Good morning, students. So the topic for today is Shri Gopi Krishna Ji ki Jeevani, the autobiography of Shri Gopi Krishna Ji. Now you might be thinking that who's Mr. Gopi Krishna Ji or who's Shri Gopi Krishna Ji. Children, I want to emphasize that Gopi Krishna Ji was the first choreographer in Indian film industry. He was one of the oldest Kathak dancers of India, one of the oldest Kathak dance, who brought nuances, different methods, who used different experiments to bring more and more dance into action, and more brought light to Indian classical dance as well as the other forms also. He's one person only that who was a very good Kathak dancer, along with he mastered in lot of other forms. He used to do film choreography, he used to do folk dance, he used to do other classical dance forms like Bharatnatyam. So he was none other than Shri Gopi Krishna Ji. He was before Pandit Birju Maharaj Ji, beta. You might have learnt about Pandit Birju Maharaj Ji in standard 7. So he was before Pandit Birju Maharaj Ji. He was a bigger choreographer as compared to Pandit Birju Maharaj Ji. Not a bigger, I am not comparing, but being a old generation choreographer, he was like, he mastered in so many things, and he was one of his kinds. So now we are going to do the autobiography of Shri Gopi Krishna Ji today. And I'm going to read the pointers, and then so that you can write it. Shri Gopi Krishna Ji का जन्म शंभू महाराज के परम मित्र. Now who was Shambhu Maharaj, students? Shambhu Maharaj was Pandit Birju Maharaj Ji's uncle. They were into the same family. So when as I told you earlier, you might have read about Pandit Birju Maharaj Ji. तो उनके भी ऑटोबायोग्राफी में ना शंभू महाराज जी का नाम आता है. शंभू महाराज जी वो है जिन्होंने, हाँ, इनको कह सकते हैं कि जो कथक के गढ़ बनाया है इंडिया में. ही इज वन ऑफ द रिफॉर्मिस्ट, यू कैन से दैट, जिन्होंने कथक को रिफॉर्म किया, नया शेप दिया और कथक को अलग अलग जगहों पे ज़्यादा पॉपुलर किया, प्रचलित किया. सो शंभू महाराज जी वॉज बिरजू महाराज जी अंकल. सो दे आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर. तो श्री गोपी किशन जी का जन्म शंभू महाराज के परम मित्र. नाउ गोपी किशन फादर वॉज सुखदेव मिश्र जी. सो इवन शंभू महाराज सरनेम इज मिश्र. तो दे आर kind of connected each other, or they might be very good friends. के मित्र के यहाँ हुआ. सुखदेव मिश्र बहुत समय तक नेपाल दरबार के संगीतज्ञ रहे हैं. नाउ इफ दे वर इनटू इंडिया, सो गोपी कृष्ण जी का जो फैमिली है, दे वर बेसिकली बेस्ड ऑन नेपाल. ओके, एंड बिरजू महाराज जी का फैमिली, एज यू नो, दे वर इनटू इंडिया, लखनऊ. गोपी किशन जी के 3 बहनें थी. सो दीज आर लाइक three sisters. So in the autobiography, you need to know who all are there in the family. So he had 3 sisters, and जिनमें से उनकी जो 2 sisters थी वो dancers बनी, और एक was a singer, and plus he had 2 brothers. So इसमें से भी ऐसा है कि एक जो ब्रदर थे उनके, वो भी उनके साथ साथ एक अच्छे डांसर बने. तो इट वाज अ चेन. पहले बोलते ना पारंपरिक परिवार में एक चेन चलता था. तो दिस वाज अ परंपरा विच वेंट इन द फैमिली, कि एक से दूसरे को आता था डांस, दूसरे को तीसरे से आता था. अभी तो सब अपने अपने हिसाब से करते थे, करते अपना प्रोफेशन, बट तभी दे हैड टू फॉलो द फैमिली परंपरा, फैमिली प्रोटोकॉल्स, कि आपका ये है तो आगे की पीढ़ियां भी काफी दिनों तक यही करती रही है. एंड लेट मी एम्फसाइज दैट आज भी गोपी किशन जी के फैमिली के, आज भी जो हमारे जनरेशन के, जो आपके जनरेशन के, दे ऑल्सो आर कंटिन्यूइंग द लेगेसी. बचपन से वे मुंबई
रहे तथा स्कूली शिक्षा प्राप्त करने कोलकाता चले गए, जहां उनके पिता ने उन्हें कथक नृत्य का ज्ञान दिया. So initially he was in Mumbai, and then after that he did his curriculum from Kolkata, where he learned and enhanced the skills of dance more. And then when he came back to Mumbai, then he got into films. And you know what, during those days there were less of competitions. तो एक जो अच्छा डांसर या कोरियोग्राफर होता था ना, उसको मूवीज में या फिल्म इंडस्ट्री में ना बहुत जल्दी एंट्री मिल जाती थी. देयर वाज वेरी लेस कंपटीशन एज कम्पेयर टू टुडे. आज अगर कोई जाना चाहेगा एक रियलिटी शो में ही पार्ट लेना कितना डिफिकल्ट होता है, बट उस समय उतना नहीं था. सो देन ही गॉट चांस वेरी इजीली. एंड देन सम ऑफ द फिल्म्स लाइक यू नो, बाकी सब फिल्म्स तो थे ही, लेकिन इनमें से शायद आपने ना मुगले आजम का नाम आज भी सुना होगा. इट्स अ वेरी फेमस मूवी. तो मुगले आजम में जो डांस स्टाइल्स और वो सब थे ना, ही वॉज द कोरियोग्राफर ऑफ मुगले आजम मूवी. सो मुगले आजम व्हाई आई एम सेइंग, बिकॉज शायद वो मूवी का तो नाम आज भी आपका जनरेशन सुना होगा. नाउ हिज choreographies in the films were getting lot of popular among the people. Like people were loving the choreographies. So उन फिल्म से नृत्य निर्देशन में उन्होंने उच्चतम शिखर प्राप्त किया. वहाँ से उनका नाम हुआ, पूरे इंडिया भारतवर्ष में लोग जानने लगे कि एक्चुअली गोपी कृष्ण जी है कौन. अब एक समय कई अवसरों पर श्री गोपी कृष्ण जी ने देश भर का भ्रमण किया और स्थान स्थान पर अपनी कला का प्रदर्शन किया. उस समय भी बेटा उनको लोगों का इनविटेशन आने लगा, एंड दैट इज हाउ उनका डांस स्किल्स, उनका नाम, दैट इज हाउ ही एक्सपेरिमेंटेड, और उनका जो डांस स्किल्स है वो इनहैंस होने लगा. अब जो श्री गोपी कृष्ण जी ने अपने पिता के बाद, लाइक हिज फादर डाइड at a very early age, but to enhance his skills more, he had to go to his father's friend, that is Pandit Shambhu Maharaj ji, that is Pandit Birju Maharaj ji's uncle. So baki tabhi he was only the person who used to train the more trained dancers. Okay, so for further studies or for further practices he went to Shambhu Maharaj ji. नाउ श्री गोपी कृष्ण जी को कभी परंपराओं से बनी शिक्षा पर विश्वास नहीं था. ना ही वॉज अ पर्सन जो यू नो लिखित या जैसा था वो वैसा नहीं पढ़ना चाहते थे. ही वॉन्टेड ऑलवेज टू एक्सपेरिमेंट विथ हिज डांस स्किल्स. ही वॉन्टेड टू एक्सपेरिमेंट थ्रू हिज क्लासिकल कथक स्किल्स. सो ही वॉज अ पर्सन लाइक दैट. इसलिए उन्होंने अलग अलग, इसीलिए मेरे ख्याल से वो उस समय फिल्म कोरियोग्राफी में बहुत नाम कमा पाए. बिकॉज यू नो वॉट, as far as film choreography is concerned, children, you have to be you have to know lot of skills, and you have to be versatile. So for versatile choreography अगर होगी तो आप फिल्मों में कोरियोग्राफी या बॉलीवुड में चल पाओगे, यू कैन से. एंड कथक नृत्य के साथ साथ, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, उन्होंने भरतनाट्यम की भी शिक्षा ये गोविंदराज पिल्लई से प्राप्त की. ही इज अ वेरी गुड भरतनाट्यम गुरु बेटा, एंड उनका नाम साउथ में बहुत चलता है. उनसे जैसे आप लोग कथक सीखते हैं तो हम आपको कथक के बारे में बायोग्राफीज पढ़ाते हैं, कथक के बारे में डिटेल्स पढ़ाते हैं, तो वैसे ही जो भरतनाट्यम के स्टूडेंट्स रहते हैं बेटा, भरतनाट्यम के टेक्स्ट में या थेरी में इनका नाम आज भी लिया जाता है. तो ही वॉज नन अदर देन श्री गोविंदराज पिल्लई से पिल्लई बेटा. नाउ दिस वॉज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ श्री गोपी कृष्ण जी. I'm going to, when we are having class, so what I'm going to do, I'm going to send you again the PDF form like I had sent you in last year. Like we did last to last week, maybe we did mudra, last class we did mudras and then videos. So I'm going to send you a PDF form. You can complete it. Please complete. It is compulsory. You have to complete it and then show me the snapshot of your copy. Send me in my personal number, and thank you so much. By the time you just practice with your practicals also beta, because we'll be doing some more practical work in the coming classes. Thank you so much, and stay home and keep dancing.